When I got up in the morning, the Lord was giving me this phrase, lovers of God. और जब मैं सुबह उठा तो मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में याद आया। So there is this phrase in 2 Timothy chapter 3. और दूसरा तिमोथियुस तीसरे अध्याय में Verse 1 it says, but realize this, that in the last days difficult times will come. पहला वचन, यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। Then there is a big list of all the different problems, all the wrong things people do. और फिर यहाँ पर आगे जो वचनों में लिखा हुआ है कि अलग अलग समस्याएं जो लोग करेंगे, वो सब उसकी सूची बनी हुई है। Verse 4 we will read. It says, people will be treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than the lovers of God. और चौथा वचन, लोग विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास की ही के चाहने वाले होंगे। Verse 5 says, holding to a form of godliness, though they have denied its power, and avoid such men as these. पांचवा वचन, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। So here the Apostle Paul is telling, in the last days difficult times will come. और यहाँ प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। Because he is speaking about believers who will backslide. और बहुत सारे विश्वासी होंगे जो पीछे हट जाएंगे। And he says people will become proud and will not be faithful. और लोग जो है विश्वासघाती और घमंडी हो जाएंगे। Verse 4 it says they'll be reckless. They will do things very quickly. They just take decisions very without asking anybody and do wrong decisions. वो ऐसा करेंगे कि जैसे कुछ भी फैसले ले लेंगे, कुछ भी परमेश्वर से पूछे बिना अपनी ही मर्जी को करेंगे। The word reckless is used when driving. So people drive in a scooter in a very fast and harsh way, or do things in a very quick way without asking anybody. और ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है वो तब यूज होता है, तब इस्तेमाल होता है कि जब लोग ड्राइविंग बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से करते हैं, लापरवाही से करते हैं। That means without any without any thinking properly, like as in Hindi, without any सोच समझ के, without, they'll just do anything in a very quick way. और इसका मतलब ये कि कुछ भी बिना सोचे समझे वो उस काम को करेंगे, जल्दी से निर्णय ले लेंगे और उस काम को कर देंगे। Whatever their desires are, they want to do it. जो भी उनकी इच्छा होगी वो उसको करना चाहेंगे। And because of that, it says, and people also, it says, they are lovers of pleasure rather than the lovers of God. और वचन कहता है कि यहाँ ऐसे होंगे जो सुख विलास, परमेश्वर को नहीं वरन सुख विलास की ही के चाहने वाले होंगे। So God wants us to be people who love Him very much. परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो उससे प्रेम रखें। But the only problem of loving God is that we get a lot of other pleasures with us. और एक ही समस्या है, जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हमें बहुत सारा सुख चाहिए। So that reduces our love for God. और वो जो सुख विलास होते हैं वो परमेश्वर के प्रेम को कम कर देते हैं। See, God has given us so many things in this world to enjoy: eating, good food, clothes, traveling, and so many things God has given us in this world to enjoy. परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है जहाँ पर हम कुछ अच्छा मजा कर सकें, अच्छा खाना दिया है, अच्छे कपड़े हम पहन सकते हैं या कई यात्रा पर जा सकते हैं। So God has not called us to be people who go to the mountains and whole day do fasting and penance. और परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम पहाड़ों पर चढ़ें और बहुत ज्यादा उपवास करें। No, we want to live ordinary lives and enjoy all the good things God has given to this world. परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक साधारण सा जीवन जिए और जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अच्छी चीजें दी है उसको हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। He gives us money, gives us pleasure, gives us good jobs and facilities, then we can all enjoy it. हमें पैसा दिया है, अच्छे सुख विलास दिए हैं, अच्छी जॉब दी है ताकि हम मजा कर सके। But before all this, we have to keep God always first. पर इन सबसे पहले ये है कि हमें परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देना है। God should be our first love. हमारा जो पहला प्रेम है वो परमेश्वर होना चाहिए। So in the book of Ephesians, God told the church in Ephesus that you have left your first love.
और इफिसियों की पत्री में लिखा है कि तुमने तुम्हारा पहला सा प्रेम रखना छोड़ दिया है। That means first priority was not God in their life. Many other priorities had come. पहली जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए परमेश्वर के लिए वो नहीं होती है और फिर दूसरी ही चीजें उसकी जगह ले लेती है। Because of that, their love for God comes down, and so they are, and because of that, they backslide and they begin to love the world and the things of this world. और इसी कारण परमेश्वर से जो प्रेम करते हैं वो कम हो जाता है, हम पीछे हटने लग जाते हैं, विश्वास में कम हो जाते हैं। God always wants us. Jesus wants the first place in our life. यीशु मसीह हमारे जीवन का सबसे पहला स्थान चाहते हैं, He doesn't want the second place. उसे दूसरा स्थान नहीं चाहिए। And because He is the King of Kings, Lord of Lords, He died for us, and He is the creator of the whole world. और क्योंकि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, उसने सारे संसार को बनाया है। He also died for us for our own sins. और वो हमारे पापों के लिए मरा भी है। And it's a great insult to keep Him second in our life. और ये बहुत ज्यादा अपमान की बात होगी कि हम उसको दूसरा स्थान दें, Or third or fourth for preference. या तीसरा और चौथा स्थान। To keep Him first preference is always do what He says and always obey His word. सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर को पहला स्थान देना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। We heard the Apostle Paul speaking about the last days. और हमने सुना कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर अंतिम दिनों की बात कर रहे हैं। And whenever Jesus also spoke about the last days, He always said the last days will be like the days of Noah. और यीशु मसीह भी जब अंतिम समय की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि नूह के समान होंगे वो दिन। The last days, that's why we must remember the Noah word. The Noah is a very important character for all of us to think about. और नूह एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पात्र है इस बाइबल का जिससे हमें सीखना है। When we see the book of Matthew chapter 24, हम देखते हैं मत्ती का 24 अध्याय verse 37 and 38 and 39. 37 से 39 वचन तक। For the coming of the Son of Man will be like the days of Noah. For in those days, which were before the flood, they were eating and drinking, and they were marrying and giving in marriage until the day that Noah entered the ark. And they did not understand until the flood came and took them all away. So shall the coming of the Son of Man be. Brother, please tell me chapter. Chapter 24, Matthew 24, verse 37 to 39. मत्ती 24 37 से 39 तक। जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। So what was the problems of the people in Noah's time? क्या समस्या थी नूह के समय में लोगों के साथ? They were so busy eating and drinking, marrying and giving in marriage. That means going for parties and wedding parties and birthday parties, and they were also buying and selling. They were busy in their work. क्योंकि वो बहुत ज्यादा व्यस्त थे, खाने में पीने में, बहुत ज्यादा जश्न मनाने में, हर एक चीज को मनाते थे, खाते थे, पीते थे और खरीदते बेचते थे। God was not in their thoughts at all. Their thoughts were always on eating and drinking and marrying and parties and enjoying life. उनके मन में परमेश्वर का कोई ख्याल नहीं था, पर वो अपनी ही दुनिया में मशगूल थे। वो बहुत ही ज्यादा मजे ले रहे थे दुनिया के। Also in their business and their work all the time. हमेशा अपने व्यापार में और अपने जश्नों में ही लगे रहते थे। So God was just crowded out of their life. They had no place for God in their thoughts. और परमेश्वर के लिए कोई भी जगह नहीं थी उनके विचारों में। So this is the condition of most born again Christians also today. और बहुत सारी नए जन्म पाए हुए विश्वासियों की भी हालत ऐसी ही है। And they just go from day to day and just doing so busy in so many things. वो हर एक दिन कहीं ना कहीं जाते हैं और कुछ ना कुछ काम करने में व्यस्त रहते हैं। But the Lord tells us that we must be alert at all times. पर परमेश्वर हमें बताते हैं कि हमें हर समय सावधान रहना है। Verse 42 says, therefore be on the alert, for you do not know which day your Lord is coming. 42 वचन कहता है, इससे जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानती कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा।
These are the words of Jesus himself. ये यीशु मसीह के स्वयं के अपने बोल है, वचन है। That is, he's speaking to you and to me. वो आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। All the time we have to be on the alert. हमें हर समय सावधान रहना है। That means, what does it mean to be on the alert? क्या मतलब है सावधान रहने का? That means, what am I doing? Is it pleasing to God? इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी मैं करूं, परमेश्वर को प्रसन्न होना चाहिए वो बात। Am I having the joy and the peace and love of God at all times? क्या मेरे हृदय में परमेश्वर का आनंद, प्रेम और शांति है हर समय? Am I desiring to tell others about the Lord Jesus? क्या मेरी अंदर इच्छा है कि मैं दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बताऊं? That is to be alert and constantly be on fire. इसका मतलब है कि हम बहुत ज्यादा सावधान हैं और परमेश्वर के लिए आग से भरे हुए हैं। Our love should not grow cold or become lukewarm. हमारा जो प्रेम है वो ठंडा नहीं हो गया है या फिर गुनगुना नहीं हो गया है। God is not interested in us just doing some ministry or singing or praying or all the outward things, but He wants us, the fire to come from our heart. वो परमेश्वर जो है, यीशु मसीह हमारी भारी सेवकाई को नहीं चाहते कि हम गाना गाएं, गीत गाएं और बहुत सारी भारी हम सेवकाई करें, पर परमेश्वर हमारे अंदर की आग चाहते हैं। That is why Jesus talks about Noah as a single person. और इसलिए परमेश्वर जो है नूह का उदाहरण देते हैं। He lived among the people who never feared God at all. They must have feared God, but they had no interest, no time for God at all in their life. वो उन लोगों के मध्य में रहता था जिनको परमेश्वर के विचार भी नहीं था, ना वो ध्यान देते थे, उनके पास समय ही नहीं था सोचने के लिए। And of all the people in this world, God only found Noah, and He was pleased with Noah. और इस पूरे दुनिया में उनको सिर्फ नूह मिला जो उनको प्रसन्न करने वाला था। And we know Noah was 500 years old when he had his children. और नूह जो था 500 वर्ष का था जब उसके बच्चे हुए। And then God told him to make a big, huge ship having ground floor, first floor, and second floor. और परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी कि एक बड़ा जहाज बनाओ जिसमें 3 मंजिला हो। Because all the people in this world, they were busy doing so much of violence, and there was a lot of immorality. और क्योंकि वहां पर लोग बहुत व्यस्त थे, वे विचार करते थे और बहुत ज्यादा शोर शराबा वहां पे होता था। When people have a lot of food to eat and drink, and a lot of business is good, and they're busy marrying and giving in marriage and having parties, there's a lot of sin also. और वहां पर ऐसे था कि बहुत सारे लोग वहां पे खाते पीते थे, जश्न मनाते थे, व्यापार करते थे, व्यभिचार करते थे और इसलिए उनके पास परमेश्वर के लिए समय नहीं था बिल्कुल। So they were so busy, and that's why they were so busy doing all sorts of sin, and they did not fear God. और वो बहुत व्यस्त थे इन सब कामों को करने में, ब्याह करते थे और इसलिए वो परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते थे। We can read that when we are reading Genesis chapter 6, 7, 8. We can read about the life of Noah. जब हम उत्पत्ति की किताब 6, 7, 8 अध्याय को पढ़ेंगे तो हम नूह के जीवन को जान सकते हैं। Noah was the one who loved God. नूह एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से प्रेम रखता था। Whatever God said, he just did it. जो कुछ परमेश्वर उन्हें करने को कहते वो कर देते। This is how we prove our love to God. यही एक तरीका है जो हम अपने प्रेम को सिद्ध कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। When we see the book of Genesis chapter 6 verse 22, उत्पत्ति की किताब को देखेंगे 6 अध्याय 22 वचन। Thus Noah did according to all that God had commanded him, so he did. Yes, sir. 6:22. परमेश्वर ने इस आज्ञा के अनुसार नहीं ब्रदर उत्पत्ति जेनेसिस 6:22 22. परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। Yes. So whatever God said, he obeyed exactly. जो कुछ परमेश्वर ने कहा ठीक वैसा ही नूह ने किया। And then when God told him to bring all the animals and birds, Noah did not protest, he did not argue, he said, I will do whatever you tell me. जब परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि तुम सारे जानवरों को ले आओ तो उसने कुछ भी विरोध नहीं किया, वो कर दिया उसने जो परमेश्वर ने कहा। Verse 5 says, and Noah did according to all that the Lord had commanded him. 5वां वचन
ब्रदर Yes. उत्पत्ति 6 का। और पर यहोवा के देवता Chapter 7 verse 5. 7वां अध्याय 5वां वचन, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। So whatever God told him, every small thing he obeyed. और जो कुछ परमेश्वर कहते थे, छोटी से छोटी बात वो आज्ञा का पालन करते थे। How do you know that you love God? कैसे आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? Whatever God says in His Word, do it. जो कुछ भी परमेश्वर आपको करने को कहें, आप कीजिए। When God tells you to marry only believers, marry only believers. जब परमेश्वर आपको कहें, आज्ञा दें कि तुम्हें सिर्फ विश्वासी से शादी करनी है, तो विश्वासी से ही करो। When God tells you after marriage, please leave your father and mother, you have to obey it. और परमेश्वर यदि कहते हैं कि आपको अपने माता पिता को छोड़ना होगा, तो हमें उसकी आज्ञा को मानना है। When God tells you to forgive other people, forgive them. यदि परमेश्वर कहते हैं कि आप दूसरों को क्षमा कर दो, तो कर देना चाहिए। God tells you to pay back, never be in debt. Don't be in debt as far as possible. Try to return your money as quickly as possible. और यदि परमेश्वर आपको आज्ञा देते हैं कि कुछ भी कर्जे में मत पड़ो, अपना पैसा वापस लौटा दो, तो हमें जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके दे देना है। So whatever the Lord wants us, we have to read the Word of God, and God shows us how to behave. और जो कुछ परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना है और वैसे ही हमें जीना है। And Noah did this for 100 years. और नूह ने ये 100 सालों तक किया। And he built the ark, that is, built the ship with his own expense. और उस बड़े जहाज को नूह ने बनाया अपने ही खर्चे से। He made such a big ship that he thought a lot of people will come also in the ship. उसने बड़ा सा जहाज बनाया, उसने सोचा बहुत सारे लोग इसमें आ जाएंगे। But nobody was interested. They made fun of him. पर कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता था, सब उसका मजाक बनाते थे। He made fun of his children. The children also was made fun of by their friends and relatives. And also when they married also, they got a lot of mocking from all their relatives and friends. और वो उनका मजाक उड़ाते थे, उनके बच्चों का भी मजाक उड़ाते थे, और उनके बच्चे भी जो जब जाते थे तो दोस्त और रिश्तेदार उनका मजाक बनाते थे। Noah did not have much fellowship at all. और पर नूह की ज्यादा संगति नहीं थी दूसरे व्यक्तियों He was से। alone as a man. Only his wife was there with him, who supported him. वो एक अकेला व्यक्ति था, सिर्फ उसकी पत्नी थी जो उसके साथ थी। His children were so much younger. He was 500 years old and his children were 10 years old. उसके बच्चे जो थे वो काफी छोटे थे, वो 500 वर्ष का था, पर उनके बच्चे 10 ही वर्ष के थे। So he didn't have anybody to tell his heart problems. Anybody. He could only trust God. नूह ने अपने दिल की समस्या किसी को भी नहीं बताई, पर परमेश्वर पर पूरा विश्वास किया। And for 100 years he had to wait patiently. और 100 सालों तक उन्हें धैर्य के साथ, विश्वास के साथ रुकना पड़ा। And he did not give up. और उन्होंने हियाव नहीं छोड़ा। But one day God told him to go into the ark, and then he destroyed the whole world with water and rain from heaven. फिर एक दिन परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जाओ, तुम जहाज में जाओ, और जल प्रलय के द्वारा मैं इस पूरे दुनिया को मैं खत्म कर दूंगा। So that's why many people did not understand. They thought that Noah was a madman. He was talking unnecessary, all these things. But one day God justified Noah and saved him and destroyed everybody in this world. किसी ने भी नूह का विश्वास नहीं किया, नहीं समझ पा रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये पागल व्यक्ति है, कुछ भी बोलता है, पर एक दिन ये सब चीजें होते हुए उन्होंने देखी। Only his children, because they obeyed God, obeyed their father and their daughter-in-laws, they were saved. क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो बचाए गए, उनकी पत्नी बचाई गई, क्योंकि वो आज्ञाकारी थे। All the daughter-in-laws, father, mother, all died. जितनी भी उनकी बहुएं थी या फिर उनके सास ससुर थे, वो मर गए। Noah's brothers and sisters and so many other relatives, they also got drowned. नूह के सगे भाई बहन और बहुत सारे जो रिश्तेदार थे वो भी डूब गए। And Noah's wife's relatives also all died. और नूह की पत्नी के रिश्तेदार जो भी थे वो भी मर गए। So when the floods came, it was too late to be saved. और जब बाढ़ आ गई तो बहुत मतलब देर हो चुकी थी बचाने के लिए। So what does this mean for us?
तो इससे हमें क्या समझ मिलती है? The Lord Jesus says, you always be on the alert. और जैसे ये परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि हमें हमेशा सावधान रहना है, Every day of our life, हर दिन अपने जीवन के, the morning to the evening, सुबह से लेकर शाम तक, or the morning to the time we sleep. और तब तक जब तक हमारा सोने का समय नहीं होता। Let us remember the Lord and fear Him and obey all that He speaks to us. परमेश्वर को स्मरण करें, हर एक बात में परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें, उससे डरें। If there is some sin that we have done or something wrong, set it right. यदि हमने कोई पाप किया है तो उसे फटाफट से ठीक करे जाकर, And so live in fellowship with God. परमेश्वर के साथ संगति में रहे। And the Lord will take us through all the problems in life, all the difficulties in life. फिर परमेश्वर जो है हमें सारी समस्याओं से जो हमारे जीवन की है बाहर लेकर आएंगे। The Lord will definitely protect us. निश्चित है ये कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेंगे। And God, Noah and his family had to be in that ship for 1 year. और नूह उसके जो परिवार था, पत्नी थी, वो उस जहाज में वो 1 साल तक रहे। It must not been very easy, but they were so thankful that they were saved and God's presence was there. और ये कोई आसान बात नहीं थी, पर वो बहुत ही धन्यवादी थे कि हम बच गए और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। So even when it stopped raining, you can read in the Genesis, Noah, God did not speak to him, but Noah tested to see whether the water had come down. और जब वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ते थे, पर परमेश्वर ने उनकी परीक्षा ली। So he just checked whether the water has come down. He sent some birds outside, crow and the dove, and then he was waiting for God to answer him, to tell him when to come out of the ship. और फिर ऐसे पानी का स्तर जब से ही कम होता था तो वो कौवे को या फिर कबूतर को देखने के लिए भेजते थे, और ताकि वो कब निकलेंगे बाहर ऐसा करने के लिए। So even though he knew the water had gone, he never left the ship till God told him to leave. जब तक परमेश्वर ने नहीं बोला उनको छोड़ने के लिए, तब तक उस जहाज को उन्होंने नहीं छोड़ा। What a God-fearing man he was. कितना परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति है वो। Anybody would have just said, his wife would have told, let us go out now, everything has come down, we are fed up of sitting inside this old ship for such a long time. But he only obeyed God. When God told him to leave, he opened the door and went out. हो सकता है कि उनकी पत्नी ने बोला होगा कि बस बहुत समय हो गया है, पानी का स्तर भी नीचे आ गया है, चलो अपन नीचे चलते हैं, बहुत समय हो गया है यहाँ। पर उन्होंने परमेश्वर का भय मानते हुए उनकी आज्ञा को नहीं टाला। And God blessed him so much because after that he was the ruler of the whole world. और परमेश्वर ने उनको बहुतायत की आशीष दी, उसके बाद उन्होंने पूरे दुनिया पर राज्य किया। The whole world belonged to him. और पूरा जो संसार है उनसे ताल्लुक रखता है। To his 3 sons and their family. उनके 3 बेटे और उनका परिवार। That says, the blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are the humble, Jesus said, for they shall inherit the earth. हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो दीन है, वो परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। Matthew chapter 5. मत्ती 5वां अध्याय। So we also have to be patient, brothers and sisters, every day of our life. हमें भी धैर्य रखना है, धीरज रखना है हमारे हर एक के दिन में। As Brother Zach said, we are living only for 5 seconds of this world. We have got crores of years to live after we die. ब्रदर जैक ने जैसे बताया था कि हमारे पास सिर्फ 5 सेकंड का समय है इस दुनिया में रहने के लिए, पर जो हमारा अनंत जीवन है वो करोड़ों वर्षों का है। So let us be faithful in these 5 seconds. और इसलिए हमें ईमानदार रहना है इस 5 सेकंड्स के लिए। The difficulties and the problems that we have to endure every day because of we don't have much money and the problems in life. God is going to be with us and He will promise us something very, very good. और इसलिए हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमारी छोटी छोटी समस्याओं में हमें उठकर बाहर आना है, और इसलिए परमेश्वर हमारी हर एक छोटी बात का ध्यान रखेंगे। Noah had to endure trouble for 100 years. नूह ने बहुत सारी तकलीफें सही थी 100 वर्षों तक। 500 years to at the age of 601 years he came out of the ark. और 500 वर्ष तक उनका जीवन रहा, और 100 वर्ष और 600 वर्ष तक उन्होंने दुख को सहा। After that he was the ruler of the whole world.
और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर ने उनको पूरा संसार का राज्य दिया। What a blessed life it was. कितनी क्या ही धन्य जीवन है था उनका। There were no troubles at all for him. सॉरी ब्रदर। There were no troubles for him. फिर उसके बाद उनके जीवन में कोई समस्याएं नहीं थी There was nobody to harass him at that time. और उस वक्त पर फिर कोई उन्हें सताता नहीं था। He lived to praise God and enjoy what God had given him. वो परमेश्वर का स्तुति धन्यवाद करते थे और जो कुछ परमेश्वर ने दिया उसके लिए खुश थे। And after the flood, he lived for 350 years more. और जब बाढ़ जो थी वो खत्म हो गई, सब ठीक हो गया, उसके बाद भी 350 वर्ष तक जिए। He died at the age of 950. और वो जब उनकी मृत्यु हुई तो वो 950 वर्ष के थे। He had to endure suffering for 100 years. उन्होंने जो 100 साल का जो उनका जीवन था, जो मुश्किलात थी उनके जीवन में, उससे बाहर आए वो। But he enjoyed for another, after that he enjoyed for 350 years. और उसके बाद 350 वर्ष तक का जीवन उन्होंने बहुत ही आनंदमय जिया। Because he was a lover of God, he obeyed God. क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको आशीष दी। So dear brothers and sisters, let us endure all the troubles that come across our life. इसलिए भाइयों बहनों, हमें भी हर एक समस्या में जो हमारे जीवन में आती है, हमें उठना है उससे। If you're a child of God, whatever is happening to your life is working for your good. जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, यदि आपको अच्छा भी नहीं लग रहा है, पर आपके अच्छे के लिए है वो। You pray to God and God will fill you with the Holy Spirit. आप प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा से भर देंगे। We fill you with joy and peace and love. हम शांति और आनंद और प्रेम से भर जाएंगे। That is the atmosphere of heaven. और ये स्वर्ग का वातावरण है। There are so many believers who do not have the joy and peace and love. बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जिनके पास शांति, आनंद और प्रेम नहीं है प्रभु का, Because they are disobeying God. क्योंकि वे अनाज्ञाकारी हैं परमेश्वर के लिए। But if we obey God, God will give us His eternal life and also take care of all our needs. यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर अपना अनंत जीवन आपको देंगे और उसके बाद यहाँ पर जीने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो हमें मिलेगा। God took care of Noah's family very well. परमेश्वर ने नूह के परिवार की बहुत ज्यादा अच्छे से देखभाल की। He provided for their education, He provided for their business, and He also gave them married partners. और उन्हें अच्छा भोजन दिया, विवाह के लिए अच्छी संगति दी, अच्छे व्यक्ति दिए। परमेश्वर ने हर एक बात पर उनका ख्याल रखा है। But Noah's first desire and his family's first desire was to please God. क्योंकि नूह की और उसके परिवार की सबसे पहली जो उन्होंने बात रखी वो थी वो परमेश्वर से प्रेम रखना। So you and I, brothers and sisters, we must always, our first desire should be to please God in everything that we do. और इसीलिए भाइयों बहनों, हमारी भी यही होना चाहिए इच्छा कि हम सब कुछ जो कुछ भी करते हैं हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। Whatever work you do in the house, in your office, on the church, let us do for the glory of God. जो कुछ भी आप घर में काम आप घर पे करते हैं, अपने ऑफिस में, जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए करें। Correct all the wrong things in your life that God shows us. हर एक गलत बातों को अपने जीवन में से हटाइए जो परमेश्वर आपको दिखाते हैं। Live humbly before your God and God will bless you abundantly. परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे बहुतायत से। God will speak to us because God has now given us the Holy Spirit in the new covenant. और परमेश्वर हमसे, यीशु मसीह हमसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें पवित्र आत्मा हमें दिया है, नई वाचा दी है। So He'll give us the Holy Spirit to endure on all these different trials for a long time. उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है ताकि हम जय पा सके सारी इन मुश्किलों से, सारे पापों से। And He will enable us to enjoy a spiritual life and also a wonderful life after we die. और ताकि हम बहुत ही ज्यादा अपनी जो आत्मिक जीवन है बहुत ही ज्यादा अच्छे से बिताएं और उसके बाद अनंत जीवन जो हमें मिलने वाला है। So, dear brothers and sisters, let us take every day, one day at a time, and live for the Lord. और हमें हर एक दिन परमेश्वर के लिए जीना है। Let us tell His gospel to other people, that the gospel that you must repent and have faith in Jesus Christ. हमें ये सुसमाचार सबको सुनाना है, हमने भी कैसे विश्वास किया, कैसे पश्चाताप किया, सबको बताना है। All those who are willing to listen. जो कोई भी सुनने के लिए इच्छुक है उन्हें सबको बताना है। Many times I say, Lord, show me somebody whom I can speak the word of God to.
कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ, कहता हूँ कि परमेश्वर मुझे बताइए कौन आपके वचन को सुनना चाहता है। Lord, when I can tell other people that God loves them and Jesus died for them. ऐसे लोगों को मैं बता सकूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं और आपके लिए परमेश्वर ने अपनी जान दी है। Jesus died to free you from the power of sin. परमेश्वर क्यों मरे? क्योंकि वो आपको पाप के बंधन से छुड़ाना चाहते थे, To give you eternal life. आपको अनंत जीवन देने के लिए। So, dear brothers and sisters, we're so happy that we have got such good examples. इसलिए भाइयों बहनों हमें खुश होना है क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है। And we've got the word of God to encourage us. हमें परमेश्वर का वचन है ताकि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सके। And if we want to obey God, the Holy Spirit will speak us through the word of God and give us the strength also. यदि हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं जो हमें सारे पाप से पर जय दिलाते हैं। So we can rejoice in God at all times. हमें परमेश्वर में आनंदित रहना है हर एक समय में। As the song says, no, प्रभु का धन्यवाद करूंगा हमेशा। और आज गीत भी हमने गाया, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। So, dear brothers and sisters, let us continue to encourage one another every day. और इसलिए भाइयों बहनों हमेशा इसको जारी रखें, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते रहें। Now others also can share the word of God, whatever God has put in your heart and encourage your heart. So कोई भी share कर सकता है। Brother Ratan Swami can start and then with the translation, and after that others can share. I thank God for today's encouraging words. आज के प्रोत्साहित वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। Last days and hello. Yes, brother. Hello. Yeah, Hearing? correct. Yeah. Last days perilous time will come. और अंतिम समय में कठिन समय आएंगे। Difficult days will come. और कठिन समय। Difficult days already started, my dear brothers and sisters. और जो कठिन समय है वो शुरू हो चुके हैं मेरे भाइयों बहनों। As we heard, as Noah endured, we also have to endure. और हमने सुना जैसे कि नूह ने जय पाया हर एक बात पे, तो हमें भी जय पाना है। 100 years he has endured. और 100 सालों तक उसने यही करता रहा, वो जय पाता रहा। Means he did not, people mocked him, he did not tell anything, he did not murmur, but he go on building the ship. और लोग उसका मजाक बनाते थे पर वो उसने कुछ शिकायत नहीं की, कुड़कुड़ाया नहीं, पर वही करता रहा जो परमेश्वर को भाता है। In our life also so many difficult times come, so many our faith will be tested, we have to endure and believe in God. हमारे जीवन में भी बहुत सारी परीक्षाएं आती है, मुश्किलें आती है, हमें हर एक बात से जय पाना है। We have to wait for God's time. हमें परमेश्वर के समय का, सही समय का इंतजार करते रहना है। Nowadays we don't have patience to wait for God. और आजकल का समय ऐसा है कि हमारे पास धैर्य ही नहीं है कि परमेश्वर के समय का हम इंतजार करें। Everything we want instantly, immediately. और हर एक चीज हमें तुरंत चाहिए, अभी के अभी। But Ecclesiastes 3 verse 11 says, God has done everything beautiful in His own time. और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने समय में परमेश्वर बहुत ही अद्भुत कार्य को करेंगे। In our life also, God will do best things in His own time. और हमारे जीवन में भी परमेश्वर अपने समय के अनुसार अच्छे कार्य को करेंगे। We have to wait for Him. We give our whole life to Him. हमें परमेश्वर का इंतजार करना है, अपना पूरा जीवन उसको दे देना है। Then as often told, Isaiah chapter 40 verse 31. Please read, sister. Isaiah chapter 40 verse 31. यशायाह 40:41 वचन 31. 31 वचन। हाँ, या यस ब्रदर। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और
श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। And Isaiah chapter 64 verse 4. यशायाह 64 अध्याय 4 वचन। हाँ, क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान ने उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोहने वालों के लिए नया काम करे। God will act for us if we wait for him. परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं जब हम उसके लिए इंतजार करते हैं। God will give us strength if we wait for him. परमेश्वर हमें बल देते हैं यदि हम उसका इंतजार करते हैं। Endurance for God is very easy, my dear brothers and sisters, if we trust him, if we believe in him. और जय पा लेना बहुत ही आसान है यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। Then God blesses. Amen. तो फिर परमेश्वर हमें आशीष देंगे। आमीन। आमीन। कोई भी कुछ शेयर कर सकते हैं, टेस्टिमनी कर सकते हैं, प्रभु आपसे क्या बात किया है, क्या प्रोत्साहन कर रहे हैं। नहीं, ब्रदर सिस्टर कोई भी शेयर कर सकते हैं प्रभु का वचन। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इज माय वॉइस ऑडिबल ब्रदर? या गुड गुड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने वचन से मुझे प्रोत्साहन दिया। जैसे कि भाई ब्रदर ने बताया कि अंत के समय कठिन समय आएंगे और इस बात सही है। और हम लोग सच में जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं हर समय कठिन रहता है। खासकर हमारा लड़ाई तो बाहर का नहीं लेकिन आत्मिक लड़ाई है और हर दिन हम आत्मा में हमें लड़ना रहता है। तो परमेश्वर मुझे सामर्थ देते हैं, बल देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं अपने वचनों के द्वारा। तो इवन हम लूत के टाइम में भी देखते हैं, जब लूत सदम और गमोरा में गया था तो वहाँ पे स्वर्गदूत आके उससे बोला था कि परमेश्वर इस जगह को नष्ट करने वाला है क्योंकि यहाँ पे दुष्टता और कुकर्म बढ़ रहा है। तो बढ़ गया है और परमेश्वर ने इसे देखा है। तो वो इससे परमेश्वर मुझे प्रोत्साहन दे रहे थे कि किस प्रकार से जल्दी उन लोग लेट कर रहे थे। उन्होंने परमेश्वर बोला जल्दी यहाँ से निकलो क्योंकि परमेश्वर इसे नष्ट करने वाले हैं। तो बाद में जब जा रहे थे तो लूत की जो पत्नी है उसने पीछे मुड़ के देखा और वो भी नमक का खंबा बन गई। तो प्रभु मुझे बता रहे थे कि अब हमें इस दुनिया के संसार की अभिलाषाएं, संसार की चीजें या संसार की अच्छी अच्छी बातें, ये सब हम एक दिन खो देंगे। परमेश्वर ने कहा कि जो मेरे लिए अपना प्राण देगा उसे पाएगा। तो इसलिए हमें प्रभु प्रोत्साहन देते हर दिन हमें उनके लिए जीना चाहिए और कभी भी जो पीछे की बातें, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और इस सब चीजों से हमें यहाँ मर जाना चाहिए क्योंकि प्रभु ने हमें एक धार्मिकता का जिलम दिया है और वो धर्म के हमें परस्यू करते हुए, पीछा करते हुए, प्रभु को धन्यवाद देते हुए जीना चाहिए। तो हिब्रूज चैप्टर 3:12 में भी लिखा है, अपने हार्ट को भी प्रभु बोल रहे थे प्रोटेक्शन रखना है, सुरक्षा रखना है, बचाए रखना है इस अंतिम समय में। हिब्रूज चैप्टर 3:12, brothers and sisters, make sure that none of you has a sinful heart. Do not let an unbelieving heart turn away from the living God. तो प्रभु प्रोत्साहन दे रहे थे कि अपने को चौकसी रखो और अलर्ट रहो और कभी तुम्हारा मन दुष्ट ना और पाप से, छल से कहीं जीवित परमेश्वर से दूर ना हटा ले जाए। हमारे मन को अविश्वास होने से बचाना है क्योंकि प्रभु ने भी हमें प्रोत्साहन दिया है कि यदि तुम राई के दाने जैसा विश्वास करो तो ये इस पहाड़ से कहो तो उखड़ जाएगा। तो प्रभु हमें हर दिन प्रोत्साहन देते हैं कि तुम भी इस अधर्म के जो दुनिया में है उसमें फंस मत जाना। और कई क्योंकि यहाँ का जो चीजें हैं, अभिलाषाएं, आनंद है, ये सब शॉर्ट टाइम के लिए और एक दिन हम छोड़ जाएंगे। लेकिन प्रभु ने जो हमें आनंद और प्रेम और दया दिया है वो सदा के लिए है और इसलिए प्रभु हमें हर दिन
प्रोत्साहन दे रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, और क्योंकि तुम उस दिन और उस घड़ी के विषय में नहीं जानते हो। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। आमीन। हेलो, प्रेज लॉर्ड। Praise the Lord. हाँ, प्रभु सत्य असो। अभी वचन जो अभी सुना है, पहले दूसरे तिमोथी 3 अध्याय पहला वचन है, वो बोल रहा है सेवट के दिन। अबे हम भी है सेवट के दिन में है, लेकिन सेवट के दिन में हम लोट की ये नोआ का जैसा है। आज भी परिस्थिति देख रहा हो तो लोट की जैसी परिस्थिति है। सब लोग क्या कर रहा है? अभी मैं मुंबई से आ रहा था, मैं लोकल में देख रहा था, सब लोग क्या करते हैं, ये लोकल पकड़ने के लिए, काम पर जाने के लिए कोई रुका है, कोई आया है, कुछ देखता नहीं, खाली ये धूम ठोक के जाने का, खाली ये सब ऐसा ही मैं चित्र देख रहा था। क्यों आज का ये दिन में ऐसा है? आज भी प्रभु का दिन आने वाला है, लेकिन प्रभु ने बोला है तुम फंस कर जाना नहीं। हम फंस कर जाना नहीं, लेकिन हर दिन हम प्रभु के वचन पढ़ाना, प्रभु के वचन पर रहना। ये नोहा ने क्या किया है? नोहा ने प्रभु का बात जो सुना, प्रभु को बात सुनकर सब आज्ञाधारकपना कर जा रहा था, इसलिए उनको कुटुंब का ये बचाव हो गया। अभी यूहन्ना को सुवर्तमान 6 अध्याय और 27 वचन क्या बोल रहे हैं? नाशवंत अन्नासाठी श्रम करू नका, तर सर्व काळच्या जीवनासाठी टिकणारे अन्न जे मनुष्याचा पुत्र तुम्हाला देईल त्यासाठी श्रम करा, कारण बाप जो देव याने त्याच्यावर शिक्का मारला आहे। आज हमारा श्रम है, आज हमारा श्रम है ये घर बांधना, शादी करना, यह सब गोष्ठी है, लेकिन हम श्रम किस लिए करना है? वचन में पढ़ने के लिए श्रम करना है, क्योंकि अभी तो सार्वकाल की जीवनासाठी टिकणारे अन्न है, प्रभु का वचन है, जिस नोहा ने ये अन्न को बरोबर पकड़ा। आज इस काल में हम वचन को पकड़ना है, खाली वचन प्रभु का सुनना। अभी ये 6 अध्याय में क्या बोल रहे हैं प्रभु? 6 अध्याय और 53 और 54 म्हणून येशूने त्यांना म्हटले, मी तुम्हाला खचित सांगतो, तुम्ही मनुष्य पुत्राचे मांस खाल्ले नाही व तुम्ही त्याचे रक्त प्याला नाही तर तुम्हामध्ये जीवन नाही। जो माझे मांस खातो, माझे रक्त पितो, त्याला सार्वकालचे जीवन आहे आणि मीच त्याला शेवटल्या दिवशी उठवी। आज प्रभु आज इस दिन में क्या बोल रहा है? खाली प्रभु का वचन खाना। ये प्रभु का वचन क्या है? भाकर, रोटी और मांस जैसा है। ये खाना, ये पीना। आज ये खाकर पीकर हमें रह गया तो बस आने के दिन में हम फंस नहीं जाएगा। तो प्रभु के बोलने के लिए मैं स्तुति करता हूँ। धन्यवाद। आमीन। 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 प्रभु की स्तुति हो। मैं कुछ मेरा एंजॉयमेंट में शेयर करना चाहता हूँ। तो जैसे कि ब्रदर ने कहा था, अभी मत्ती का 24वां अध्याय का 42 पद, चैप्टर 24 वर्स 8 में इस तरीके से लिखा है
तो इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि प्रभु तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। तो मैं इसी वचन को लेके सोच रहा था। तो जागते रहने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि जागते रहना क्या होता है, मैं पहले समझ नहीं पा रहा था। तो जागते रहने का मतलब ये होता है कि अभी पाप में नहीं गिरना है, संसार की अभिलाषाओं में, तो बुरे संगत में जाके बुरी चीजों में जाके नहीं फंसना है, परंतु निरंतर जागते रहना है, सोना नहीं है हमें। क्योंकि हमारा ये अंदरूनी युद्ध जो है सुबह से लेकर रात तक हमारा चलते रहता है। तो हमें जोरों शोर से हमें लड़ना है, जो हमारे पापों के विरोध में, और हमें जयवंत भी होना है। तो क्योंकि सोने वाला जो होता है वो नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो सोया हुआ उसका जो कंडीशन रहता है वो नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो पाप में सो चुका है, पाप में दोस्ती हो चुका है उसका। तो वो उससे नहीं लड़ सकता है। तो हमें निरंतर जागते रहना है, ताकि हम जाके पाप में ना गिरे। तो हमारे प्रभु आने का समय हम जो है निष्कलंक और बेदाग होके हम तैयार रहे। तो इसी तरह से और एक वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 6 वचन में यहाँ इस तरीके से लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहे। तो प्रभु बार-बार ये चीज़ को बता रहे, यहाँ में दर्शा रहे हैं कि हमें सोना नहीं है, जागते रहना है। तो हमें निरंतर आत्मा में हम निरंतर प्रभु का जैसे कि ब्रदर ने कहा था, पहला प्राथमिकता प्रभु को देना है। इसका मतलब हर प्रभु का जो आज्ञा है, हर वचन है, उसके साथ में हम लोग को खड़ा रहना है, ना कि उसके विरोध में। तो निरंतर हमें इसी तरह से प्रभु में बढ़ते जाना है। प्रभु का आगमन नजदीक है, इसलिए हमें और ज्यादा हमें काम करना है, और ज्यादा हमारी आत्मिक युद्ध को लड़ना है, हमें विजय विजय के लिए। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। Praise the Lord, brothers and sisters. आज प्रभु का उनको हमेशा अलर्ट रहना है, जागते रहना है कि प्रभु आपका इच्छा में कर रहा हूं कि नहीं। तब प्रभु का इच्छा करेंगे, प्रभु का वचन पाएंगे, तभी हम उसका प्रभु का वचन का मांस और खून पिएंगे। इसका मतलब है कि प्रभु का जो इच्छा है वो ही करना है, जैसे नूह ने किया। जो प्रभु कहता है वो करता है, जो वचन कहता है वो ही करता है। नहीं बच्चा, अगर हमारा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कुछ भी बोलता है ये वचन के खिलाफ है, प्रभु के इच्छा के खिलाफ है, पवित्र आत्मा हमको बताएंगे, तो हमको नहीं करना है, ना बोलना चाहिए। सो नूह ने कितना बार ना बोला। लोगों को बहुत गुस्सा आ गया कि ना क्यों बोलते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं मिलते हैं, हमारा संगति में क्यों नहीं आते। तो नूह का बहुत मजाक उड़ाते थे, बहुत परेशान करते थे। लेकिन नूह बिल्कुल दृढ़ रहे। He was so kept, said, Lord, मैं आपके साथ रहूंगा, मरेंगे तो मैं आपके साथ ही रहना चाहा हूँ। नोआ के पहले कौन था जो प्रभु के साथ चले थे? वो इनॉक था। तो उन्होंने सुना कि कैसा इनॉक ने कैसे प्रभु के साथ चला, और एक दिन प्रभु ने बोला, प्रभु इनॉक, आपसे मैं ही खुश हूँ, आप जाओ, स्वर्ग में आ जाओ। उन्होंने ही वॉज टेकन द ओनली पर्सन टेकन अलाइव टू हेवन। प्रभु उसके साथ तो खुश थे। बहुत प्रभु के प्रेमी लोग बहुत ही कम है, विश्वासी में भी लोग बहुत कम होता है। इतना हम लोग उतना विश्वासी देखे हर कलीसिया में, लेकिन प्रभु के साथ चलने वाला बहुत कम होता है। वो दुनियादारी में काफी घुसते हैं। एक बार जब प्रभु में पहले आते थे वो अच्छे हैं, बाद में सब उनके पैसे की लालच और सब सेक्सुअल अभिलाषाएं, पैसे की, और जवान भी कंट्रोल में रहते नहीं है, टीवी देखते हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, तभी उसका प्रभु का प्रेम उनका जीवन से सब निकल जाता है और सांसारिक चीज सब आते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा है उनका प्रभु के लिए प्रेम। आउटवर्ड, प्रभु का वचन कहता है, आउटवर्ड फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, बाहरी तरफ से ठीक है, सब देख रहा है, ठीक है, मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन दिल की बात तो दूसरी है। प्रभु कहता है, मैं तो बाहरी चीज देखते नहीं है, सैमुएल को बताया, मैं तो सब आपकी दिल की बातें मैं देखता हूँ, आपकी विचार कहाँ है, आपकी इच्छा क्या होता है। तो ऐसा कभी प्रभु देखते हैं कि बहुत कम विश्वासी भी है तो प्रभु के सच्चे दिल से इच्छा करते हैं। हमको भी अपने अपने जीवन में जब गलत जब सही समस्या आते हैं तो प्रभु के लिए जीना चाहिए, तभी हम प्रभु की संगति में आएंगे। बहुत कम समय बाकी है। आज का दिन 5 अप्रैल है, आज का दिन तक खत्म हो गया। कभी 5 अप्रैल तक कभी हमको वापस मिलेंगे नहीं। कल तो 6 अप्रैल है। प्रभु गॉड विलिंग हम लोग 6 अप्रैल का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।
सुबह से शाम तक प्रभु का धन्यवाद करके अपना मेहनत से प्रभु के लिए काम करना, जो कुछ भी हम काम घर का काम हो या ऑफिस में काम हो, मजदूरी करते हैं, प्रभु के लिए करना है। तो प्रभु हमारे जीवन में पवित्र आत्मा से इतना सारा भरेंगे, हम जैसा स्वर्ग में होगा ऐसा ही हमारा अनुभव होगा। तो ये से हमको लड़ना चाहिए, प्रभु आपके साथ ही आपको चलना चाहिए। प्रभु हमको जबरदस्ती नहीं करते, प्रभु बुलाते हैं, प्रभु आपको इच्छा है तो मेरे पास आओ, मैं आपको स्वीकार करूंगा, इच्छा नहीं है तो मैं किसी को जबरदस्ती नहीं करते। तो इसलिए हम यीशु समाचार दूसरों को भी बता सकते हैं, अपना परिवार वालों को, अपने सगे वालों, बाकी विश्वासी को, तो सब लोग प्रभु के करीब आए और प्रभु की महिमा करें। तो प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। प्रभु का वचन, पवित्र आत्मा हमको बहुत ही बताते हैं, वचन भी पढ़ो, प्रार्थना करो, जो भी वचन और संगति में भी रहो, और वचन का जो भी प्रभु कहता है उसका पालन करो, तो हमारा